एक पार्टिसिपेंट होगा। Madhumati ma'am, can you turn on your camera? So, hello everyone, I am Reenu from Staircase, and I welcome you all to our counseling session with Dr. Madhumati, and we will cover topics specific learning difficulties and development. As in today's world, we all are aware that there are many students who are facing some specific difficulties, and they are differently able, and there are many people who are not able to understand their problems. So, in today's session with our faith-based counselor and our school counselor, Dr. Madhumati Singh and Dr. Anil Singh, we will learn about the topic, and I welcome you, ma'am, for the session. So, moving on, I would like to introduce faith-based counselor for today's episode, Dr. Madhumati Singh. She is practicing psychologist for last 30 years in Delhi. Now she moved to Noida. She is doing PhD, has done PhD and diploma educational work, professional counseling and guidance. Diploma in homeopathy, naturopathy and HR. Licensed practitioner, neurological state practice and quantum hypotherapy. Consultant psychologist at Gurkha India, online consultant for Bajaj Health and visitor partner Tinder. And she is also a director at Faithbase and a Rotarian of Rotary Club of New Delhi. And now I'd like to welcome our second counselor for the session, Dr. Anil Kumar Singh, who is also a special educator, and she is working in this field from many years, and currently she is serving in a SD Public Senior School as a special educator. I would like to welcome you, sir, and I request you to turn on your camera. And now I welcome you all to our session, and I also like to welcome our Facebook audience as we are live on Facebook. Madhumati ma'am, I request you to take over the session. Thank you. Thank you, Renu, and welcome you all, everyone. As people will join us on this Fairgaze, one of the largest portals for the K-12 community. I request everybody else to please mute themselves. I request everyone, please mute yourselves, as there are very noise coming from background. So please mute yourself, everyone. तो मंडे को तू ग्रामर भी आया था फिर किसी को डांट पड़ रही है? Yes, ma'am, बहुत बुरे वाली. Anil sir, I request you to, can you please turn on your camera? Yeah, I am on camera, ma'am. Okay, sir. So Madhumati ma'am, you can start. Yes, so one more time, good evening, everyone. And it's an honor, a pleasure to be here on the Fairgaze platform, one of the biggest, largest portal for the K-12 community. And our endeavor is to have a one-stop shop for the entire development of our children in terms of their holistic development. So welcome once again, one and all, and special hello to Manendra Singh, who is going to be joining us, and we both are going to together talk about the specific learning difficulties, what exactly is SLD. कोशिश करेंगे हम चीजों को simple रखें and not academic and difficult to understand. So to begin with, एक typical scenario है, typical scenario जो हम कहते हैं स्कूल में होता है. वो कुछ बच्चे होते हैं जो कि मैम होमवर्क कॉपी नहीं लाए, काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, मैम हाथ दुख जाता है लिखते हुए, इन टीयर्स. ये आपको मैथ्स के कितनी बार आपको ये ये चीज एक्सप्लेन की है, आपको अभी तक समझ में नहीं आया मैथ्स, और वो बच्चे का रोना निकलता है मैथ्स के नंबर्स को देख के ही वो घबरा जाता है. टिपिकल एग्जाम्पल है मेनी. किसी बच्चे की हैंडराइटिंग, कहते हैं हैंडराइटिंग आपकी इतनी गंदी क्यों है, आप इतना स्लो क्यों लिखते हैं, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स इतनी क्यों है. नाउ दिस इज अ टिपिकल सिनेरियो, एंड कुछ टाइम पहले तक वी यूज्ड टू फील इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द चाइल्ड्स लर्निंग. Nobody paid any attention to it till about a couple of decades back, even till about a decade back. It was okay, this child needs tuition. स्कूल में पढ़ेगा, घर में आके बच्चे माँ पढ़ाएंगे, पापा पढ़ाएंगे, ट्यूशन भी रखेंगे. It's just a complete blind spot. So our school and our home
we both areas we need to be more aware of what exactly is happening to this child or these set of children. You'll be surprised to know that अगर 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों, so every 10 children there are 3 children who fit into the specific learning difficulties. 3 बच्चे, तो 50 बच्चे, तो you have at least 15 children who are having difficulty with learning. So उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे. वेरी वेरी क्विकली आई विल गो ओवर इट. एंड ऑफ कोर्स कोशिश ये है कि रेनू को अगर यहाँ पे कोई चैट में anybody has any questions, we can always take them up. Yes, But yes, yes. the first thing is to understand what exactly is specific learning difficulties. So basically अगर हम टेक्स्ट बुक हिसाब से जाएं तो हम लोग बोलते हैं there is something known as intellectual difficulties and there is something known as specific learning difficulties. Intellectual difficulties or disability and specific learning difficulties. So ये दोनों चीजों का अगर हम समझ लें कि दोनों में क्या चीज है और क्या चीज ज्यादातर दिखने में आती है. So according to recent UN report, 75% of children with disabilities in India do not attend any educational institution. That is more than 7.8 million children. Imagine, शुरू में ही जिंदगी के वो 10 कदम पीछे ही रह जाते हैं. So we are looking, and there are more than 2,500 schools for children with special needs in India. Schools हैं, need है, लेकिन awareness नहीं है. तो यहाँ पर हम लोग आज फेयरगेज पे ये डिस्कस करेंगे कि how we can bridge the gap. So what are these special need children? Who are these children? एंड एकेडमिक चीज वर्ड सुने हुए हम, लेकिन हम बेसिकली 3 चीजों पे फोकस करेंगे आज. बट आई क्विकली गो ओवर वो होते क्या है. ऑटिज्म होता है, डिटेल्स में डिस्कस नहीं करेंगे हम. ऑटिज्म है, एस्पर्जर सिंड्रोम है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, सेरेब्रल पॉल्सी है, डाउन सिंड्रोम है, डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्प्रैक्सिया है, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, ADHD, cystic fibrosis, cleft lip, missing limbs, to name most of them. So इनमें से जो IQ related जो issues हैं, जिनको intellectual मतलब IQ deficient है, those children are basically where we like to call them would be Down syndrome, cerebral palsy. We could also talk about, so basically who have a brain deficiency. The others could be the physical disabilities, like I just now told you. It could be blindness, deafness, missing limb, and so on. Now comes the other part of it, जो आज का हमारा topic है, कि specific learning difficulties. So specific learning difficulties में we are talking about जो रह गए हैं. We've heard of these words. Dyslexia, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे क्या है. 3 चीजों की बात करेंगे. Dyslexia, dysgraphia and dyscalculia. ये 3 चीजों के बारे में हम यूं बात करेंगे क्योंकि यही अनडायग्नोज्ड है. You see, बच्चा अगर देख नहीं सकता तो वो दिखता है कि वो स्पेशल नीड्स है उनकी, he or she is blind. But these 3 areas are very confusing. और वो टिपिकल सिनारियो है जो मैंने आपको शुरू में बताया कि बच्चा इंग्लिश, और यहाँ पे मुझे एक चीज याद आई जो मैं जल्दी से 1-2 मिनट बात करना चाहूंगी. हमारे एजुकेशन में एक फ्रेज यूज करते हैं, the 3 R's, R as an alphabet R. So हम कहते हैं एक अच्छा स्कूल वो होता है जिसके 3 R's are well taken care of. So लोग सोचते हैं what is the 3 R's? 3 R's is reading, writing, I know W से शुरू होता है but यहाँ पर phonetics की बात हो रही है. Reading, writing, arithmetic. Arithmetic is arithmetic A, but 3 R's का मतलब है यही जो आज का टॉपिक है कि अगर बच्चे के ये 3 चीजें असेसमेंट में आ जाती हैं शुरू में, in the primary years, that school is able to cater to the children with specific learning difficulties, reading, writing, arithmetic. इसीलिए अगर आपको याद है बचपन में, अगर हम सब लोग, we all remember our primary years, why would the teacher say please get up and read English, Hindi, reading? तो कुछ बच्चों के धक धक धक, their heartbeat could go कि मुझे ना बोलते जान, read करने के लिए. I can't read. They don't know. उनको भी नहीं पता. उनको लगता है वो slow है. So what happens is
that these three things determine specific learning difficulties. Now, in primary years, the whole idea is, that is why we're sitting today, that in the home, parents, in the school, teachers, how we can identify these children and how we can have a holistic support, a holistic growth, development of these children in their academics. Let's talk about dyslexia. Dyslexia का बहुत ही सिंपल मीनिंग ये है, जिन बच्चों को dyslexia का बेसिक मीनिंग है that who have difficulty in reading English, particularly English. Reading. Dyslexic child is somebody who has difficulty in reading and spellings. So dyslexia में बहुत तभी हमारे spellings की we have dictation to identify. So the bottom line is, when we have these tools, we have the tools of assessment, then why is the teacher not able to identify children and say, okay, these children are having difficulty with spellings? So then we talking about dyscalculia. Dyscalculia वो typical, I think तारे ज़मीं पर हम सब ने देखा है और बड़ी अच्छी मूवी उन्होंने बनाई है, बेसिकली इसी डिसलेक्सिया पर ही है वो, और अगर हमने उस मूवी को बड़े ध्यान से देख लिया तो आई थिंक काफी एजुकेशन वहीं से हो गई है, which is hats off to those people, which basically also comes to dyscalculia. People have an inherent phobia. Some children have an inherent phobia for numbers. So mathematics, logical, that particular subject, numbers, is what they completely cannot understand. They don't have an aptitude for it. And they are somewhere given to believe by the teacher and by the parents, unfortunately, कि तुमको इतनी बार सिखाया है, क्या तुम्हारा दिमाग कम है, तुम्हें समझ में नहीं आती है? And the child actually starts to feel that there's something wrong with his brain. And you know what? अगर इन तीन चीजों को एलिमेंट को अगर हम हटा दें तो बच्चे का और प्रोफाइल क्या है? They are generally very cheerful, they are friendly, they have leadership skills, they're very creative, they may be good with singing, painting, dancing, they may be good in sports. वो उनका टोटल पर्सोना बनता है ये तीन चीजों में vulnerability को छोड़ के. So within this comes profiling the child. So are we able to profile the child at home? Are we able to profile the child in school? For example, I have worked in schools, so मेरा तो ये concept होता था कि जो counselors हैं वहाँ के, they can go to the classrooms and ask the class teacher about, let's say, first term, second term, जो बच्चे English और mathematics में बहुत कम number लाते हैं. There would be again a handful. There are not too many children. So identifying them is very easy. Then comes what we need to do. What we need to do is, teachers in themselves cannot give so much of time to each child. Then comes what we call as synergizing with the parents, which is the caregivers at home. So what we can do is, and what I did in my schools was, we used to have training sessions for the parents. It would be after school 1 hour, once a week, for all different subject, different sections, different classes. And you know what? आप हैरान होंगे इस particular चीज में, अगर हम primary years में इसको अगर हम manage करना सीख लें, तो overall school performance of the child becomes better, and the child starts feeling more confident, and it is a big relief for everybody. So after the 3 hours, when we say which other kids generally do not need or might benefit from time to time, so it is worthy of admiration how brave these kids are to wake up each morning and face the new day. आज maths का subject है, आज English है, but with the same challenges as previous day. One also appreciates the patience, tolerance, and loving understanding that parents learn and must develop. So children with special needs also have a hard time regulating their emotions, and they may act out behaviorally because they have difficulty in communicating their feelings, especially when upset. So the fight, flight, flow along response to conflict is primal in us, but with them, they are more prone to using their hands and limbs. कभी बहुत
उनको एजिटेशन होगा, बहुत रेस्टलेस होंगे, they may have anger bursts, you know, or they may have comfort eating, या तो वो बहुत ज्यादा खाएंगे या बिल्कुल नहीं खाएंगे, and they have difficulty in actually expressing their feelings because somewhere they actually feel कि वो totally उनकी responsibility है कि वो पढ़े, मतलब वो इंग्लिश पढ़ें, उनकी स्पेलिंग समझें, completely their problem, so they are unable to say that I need help. A parent's emotion may also run high because they may wonder, you know, what they are doing wrong. Why is their intervention not working? Like the parent would be saying, how many times I've taught you this? How many times? Why are you not able to learn it? Why are you not able to learn the spellings? So learning, rote memory does not teach you spellings. There is something, what we say is dyslexia, which could be one of the reasons how the child is unable to cope. So let's talk about one by one. जब dyslexia होता है, when we say, okay, the child is having difficulty in reading, difficulty in phonetics. बहुत बार हम लोग भी अगर हम देखें A-E-I-O-U, we confuse, believe, B-E-L-E-I-E-V होता है या B-E-L-I-E-V-E. कुछ गलतियां हम करते हैं, but we understand after some time, but they will always, a dyslexic child will have difficulty in joining phonetics. They are unable to join phonetics. So we'll talk about how to teach them differently. So difficulty in spellings, difficulty in writing. You know, teacher ne blackboard pe kuch likh diya. Most of the children have finished. Some children always are left behind. They are finding it difficult. Because they're taking each alphabet writing, they don't know the spellings. They don't know the phonetics. तो वो erase हो गया. Oh, ma'am, last के हो रह गया. Then they say तो रह गया ये तो. So they leave it. And when they leave it, they get scolded by the teacher, and the teacher is wondering that maybe you are being naughty in the class. Maybe you are just being a naughty child. So the not knowing that the child is having so slow writing, untidy writing. The writing is either very big or it is small, big structures. Just looking at the handwriting of a child, and this is for the teachers, you can have a good idea that this child may be having dyslexia. So identifying dyslexia is more or less easy, provided we know those 2-3 signs, and which is basically, I repeat again, having difficulty in reading, they are unable to read. Now, another part of dyslexia is some children can read. हम कहते हैं बच्चे ने तो पढ़ लिया, अब उनको एक पैराग्राफ उन्होंने पढ़ा और उनको बोलें कि speak, say what have you understood in this paragraph in your own words. They can read, they've read it. The approach to counseling children, special needs, they've read it. And when you tell them that, let's say her name is Suman. Okay, Suman, can you tell me in your own words, what have you read? They will not be able to tell you. Now, the reason is not because they have low IQ. The reason is that their focus was only on reading the alphabet and joining them to make a word to the next word, to the next word, to the next word only. Their comprehension is on sleep mode. They are only reading it out. Why are they doing that? Because they find it difficult to read. So पूरा उनका ध्यान होता है कि ये correct word मैं बोल रही हूँ ना, specially तो है needs, is, to. So they have difficulty in punctuation. That's another sign to find out, because they are not able to comprehend the first time. That's another very important signal to say that the child may be dyslexic, unable to put the reading and comprehending at the same time. The child may need to read it 2 times, 3 times, and then will be able to put. So those are the basics of dyslexia. Dysgraphia, very typical, very easy to know. Unfortunately, it's very painful for the child. बच्चे ने homework किया, class work किया. I think my internet connection is unstable. Sorry, my internet connection. Repeat. We're talking about dyscalculia. Yes, dyscalculia. So dyscalculia is typical of what happens is
the child in the math subject, has a lot of mistakes, a lot of, unfortunately, that cross, which I think the teachers are avoiding now, and also they're not using the red pen. Thank God for that. In our times, used to be a big bother. So a lot of mistakes and unable to cope up with basic mathematics is dyscalculia. And the third one, what we say, is dysgraphia. Dysgraphia, like I said, difficulty in reading. Dysgraphia is difficulty in writing. The same thing, the phonetics, spellings, slow. So these three are the basic. And also, Renu, let me know how much is my time, and I don't want to take Anil's time. Let me know how much of time I have, because he also will be having some precious input to give. Let me know. I think it's Anil, sir. You want to add some of your insights? You can add, and we can continue with both of you. Okay, perfect. Thank you very much to Fairgaze and Dr. Madhumiti Singh. बहुत ही अच्छा आपने एसएलडी के बारे में बताया, और सबसे अच्छी चीज है कि इस टॉपिक को आपने सेलेक्ट किया जो कहीं ना कहीं अवेयरनेस स्प्रेड करेगा, और डेफिनेटली क्योंकि सबसे बड़ा गेटवे अवेयरनेस है हम लोगों के बीच में, अगर हमें पता हो एसएलडी क्या है, कैसे है। मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो जो टॉपिक लिखा है स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज, तो इन इंडिया, बिकॉज recently in 2016, according to Right to Person with Disability Act, we are using this word as a specific learning disabilities. And second thing is in CBSE and if we are talking about students, schools, तो बहुत सारे कंसेशंस हैं, बहुत सारे रिलैक्सेशन भी हैं जो रिसेंटली इन दिसंबर 2020 बहुत एक 40% disability, like that those who are suffering from learning disability, so they can achieve like only one percentage of disability including in this, only 40%. दूसरा, जैसे मैम ने बताया, बहुत सारे डिसेबिलिटीज के बारे में बताया, ऑटिज्म है, एस्पर्जर सिंड्रोम है, और कई तरह की ऐसी डेवलपमेंटल और साइकोलॉजिकल इश्यूज बताए हैं। तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी है और लर्निंग डिफिकल्टीज है, दोनों में डिफरेंस बहुत जरूरी है समझना। दो तरह की प्रॉब्लम होती हैं। वन, लाइक समबडी इज राइटिंग नॉट इन प्रॉपर राइटिंग एंड doing mistakes, like suppose spelling mistakes, and maybe some students are not reading good. So वहां हमें learning disability जो है, that is one type of label that we are counting as a disability. So that disability is basically neurological, which can be, like मैम ने बताया कि language एक बहुत बड़ा पार्ट है और बेस है लैंग्वेज, और हमारे जो ब्रेन में जो लोब है उसमें वर्निक एंड ब्रोकाज एरिया है जो कि रिस्पॉन्सिबल है लैंग्वेज के लिए। तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो वहां होता है उस बच्चे में। तो इट टाइप ए न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लर्निंग डिफिकल्टीज, तो वो थोड़ा सा अलग है। दिस इज बेस्ड ऑन लर्निंग एंड एक्सपोजर, कि एक बच्चा है, he is having like good intellectual but not getting good exposure of language in early school. I suppose if you can imagine that government school students, like they are in NCD schools, if you will talk about that, they are not getting much exposure related to language. तो दोनों में ये डिफरेंस है कि एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, फर्स्ट टाइम इंडिया में 2016 में इंट्रोड्यूस हुई है और उसको एक्ट में रखा गया है पहली बार। तो बहुत बड़ी एक ग्रेट अचीवमेंट है, ताकि बच्चों को अच्छा उनके राइट्स के अकॉर्डिंगली उनको बेनिफिट्स मिल सकें। दूसरा जो लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, डेफिनेटली जैसे मैम ने बताया कि देयर आर सम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सपोज autism can also be including in this, and other disability, like they are facing learning problems, so this can count in learning difficulties. And another scenario, like those have borderline intellectual functioning, and they are not coming in learning disability and they are not coming in intellectual disability, so they have poor comprehensive skills and they have poor receptive and expressive skills, expressive language skills. So they are also facing a lot of problems in learning difficulty, and they are not able to cope up with the syllabus, especially in like elementary schools. और जब syllabus बढ़ जाता है 6th, 7th, 8th क्लास में, बड़ा comprehensive syllabus हो जाता है, तो थोड़ा सा पता नहीं चलता। दूसरा जो पेरेंट्स का कंसर्न है, क्योंकि हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए
बेस्ट करना चाहता है और करता भी है। बट कहीं ना कहीं जो अवेयरनेस है कि अर्ली क्लासेस में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप इवेल्युएशन है, 1 पॉइंट आंसर है या एमसीक्यूज टाइप है आंसर्स हैं, तो बच्चा अच्छे से कर पाता है क्योंकि उसकी रीजनिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, क्योंकि उसका इंटेलेक्चुअल लेवल एवरेज होता है, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और बच्चा, यही सब टीचर भी ऑब्जर्व यही करते हैं, पेरेंट्स भी यही ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है। लेकिन जब वो 6 क्लास में आता है, जो ट्रांजिशन आता है प्राइमरी टू एलिमेंट्री, तो वहां एक बहुत बड़ा गैप होता है, वो होता है लैंग्वेज का, कि एकदम सिलेबस बढ़ना, उसका सिलेबस बढ़ जाना, उसके जो आंसर्स है वो, उनका जो लेवल है वो बढ़ जाना, इसकी वजह से वो बड़ी डिफिकल्टी फेस करता है और डायग्नोसिस नहीं हो पाता। और जब तक डायग्नोसिस नहीं हो पाता, इंटरवेंशन स्टार्ट नहीं होती। बट आजकल स्कूल्स में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं, प्राइमरी क्लासेस में भी, और बहुत सारी ऐसी हैं जो जनरलाइज की जा सकती हैं, सभी बच्चों के साथ में की जाती हैं, और उनमें कहीं ना कहीं इन बच्चों का भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शेयर करना चाहूंगा, कि जब भी हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी स्पेशली, तो क्लास 3 तक हम किसी को डायग्नोज नहीं कर सकते। क्लास 3 तक, बिकॉज देर इज स्कोप, हम वी आर नॉट एबल टू जज लाइक दैट द चाइल्ड इज हैविंग डिसेबिलिटी और नॉट, और हम इंटरवेंशन देते रहते हैं। तो अर्ली क्लासेस में, जैसे मैम ने बताया कि जो प्राइमरी क्लासेस हैं, जब स्टार्ट होती है क्लास है, उसकी बेसिक जो 3 आवर्स हैं, और उसका जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, उसका जो पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो उसकी जो परफॉर्मेंस है एक क्लास में, उसको ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है वहाँ आइडेंटिफिकेशन में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ यहाँ जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। मे बी दैट यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम दिस स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और लर्निंग प्रॉब्लम्स, बट यू कैन बी एसेट्स। आप बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स की, क्योंकि जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, हम एकेडमिक पार्ट को फोकस करते हैं ज्यादा, और इन इंडिया लाइक वी आर मोर फोकसिंग ऑन एकेडमिक पार्ट, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स को कवर करना। क्योंकि जो बच्चे का जो सेल्फ एस्टीम है, उसकी सेल्फ एफिकेसी है, उस बच्चे की इन्वॉल्वमेंट है, उसकी जो सोशल इंटरेक्शन है, इन्वॉल्वमेंट है, सोशल इन्वॉल्वमेंट है, वो बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स हैं एसएलडी के, मैं देख चुका हूँ। और मेरा मानना है कि एकेडमिक को फोकस करे बगैर अगर हम उनके पर्सनैलिटी और उनके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को फोकस करते हैं, तो दे आर डूइंग एक्सीलेंट इन देयर लाइफ, or they are achieving good in academic also, because CBSE is also giving some relaxation, so that can be one support and they can do well in academics also. और बहुत सारे ऐसी केस स्टडीज हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं मेरे पास, जो अर्ली क्लासेस में टीचर्स ने इंडिकेट किया, टीचर्स ने बताया कि ही इज नॉट मेंटेनिंग बुक्स, ही इज नॉट मेंटेनिंग होमवर्क असाइनमेंट्स, और उसका कोई काम पूरा नहीं होता है। डिसऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो हैं, जो पर्टिकुलरली उसके बैग को किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, बिहेवियरल इश्यूज हैं, और बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट इश्यूज भी होते हैं बच्चों के। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उन चीजों पर फोकस करते हैं, तो उस बच्चे की जो स्ट्रेंथ है, जो एक पर्टिकुलर उसका जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और वो दिखाई भी देता है, और उसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है, और वो अच्छा अचीव कर सकता है। rather than psychological aspects that we should focus on academic also, but in some in like if we will talk about the primary classes or till 8th class, in as a special educator I am saying that if we are giving intervention, तो अल्टीमेटली जो 8th क्लास तक हम उसको इंटरवेंशन देते हैं। जब बड़ी क्लास में बच्चा चला जाता है, तो इतना ज्यादा इफेक्ट स्पेशल एजुकेशन का और दूसरे जो एकेडमिक एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर हम फोकस करते हैं, उतना नहीं होता, बट उसकी पर्सनैलिटी और ग्रूमिंग जो है, उसका बहुत इम्पैक्ट वहां रहता है। तो मेरी तरफ से वैसे मैम ने सब कुछ ही बोल दिया है, इंट्रोडक्टरी पार्ट बता दिया है। एंड लर्निंग डिसेबिलिटी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, मान लो उसकी जो सीवियरिटी है वो भी मैटर करती है। कई बार माइल्ड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इन एनी एरिया लाइक डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, और मे बी सम लाइक अफ्रेजिया और अदर लैंग्वेज इश्यूज, तो कई बार वो पता नहीं चलता, और वो बच्चा कोप अप कर लेता है अपने साथ साथ, टाइम के साथ साथ में वो कोप अप हो जाता है, और कहीं ना कहीं कुछ अच्छा अचीव वो कर लेता है आगे लाइफ में। बट इम्पोर्टेंट इज अवेयरनेस,
बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी फेयर गेज का ऑब्जेक्टिव भी है मुझे लगता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए भी कि एक अवेयर होना बच्चे के बारे में कि किस टाइप की जो डिफिकल्टीज हैं वो बच्चा फेस कर रहा है, इंक्लूडिंग एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल। उसके साथ साथ में असर्टिव होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पेरेंट्स का एक नजरिया रहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आगे बढ़ जाएगा, ये तो ठीक हो जाएगा, टाइम के साथ आगे चला जाएगा। तो वो ये जो इश्यूज हैं उनको हमें असेस करना चाहिए, उसको हमें टेक्निकल सपोर्ट भी लेनी चाहिए, स्पेशल एजुकेशन है, साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। Great. I think a lot of things, I think Anil also added very nicely. And I think आपका एक point of view कि 2016 Act जो है, इसी से ही पता चलता है कि हम लोगों की जो awareness है वो अब जाके और ज्यादा हम लोग empowered हुए हैं. So हम कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, better late than never. So I think Anil also put it beautifully well that how we need to be more aware. Now, coming back to what we were talking, and I think we are basically talking about special learning difficulties, which is the dyslexia, dysgraphia, dyscalculia. इन तीन चीजों में मैं एक चीज ऑफ कोर्स हम कहते हैं कि एक टेक्स्ट बुक अप्रोच होता है, वो ये है कि 3rd स्टैंडर्ड तक हम देखते हैं कि बच्चा का वो डेवलपमेंट, कुछ बच्चे थोड़ा डिलेड डेवलपमेंट होती है. Some children take a little longer for the milestones. So within that textbook point of view, yes, it is perfectly, मतलब वरी वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है. होता क्या है, बच्चा जैसे ही केजी में आया, किंडरगार्टन में आते ही या तो पेरेंट्स ओवर एंथुजियास्टिक होते हैं या बहुत जल्दी इंटरेस्ट खत्म कर लेते हैं अपना. शुरू में होता है पहला 1-2-6 महीना, उसके बाद टीचर जाने और बच्चा जाने, और दे आर वेरी पैरानॉइड कि मैम इनकी जो है ना एक ही जो लाइन है ये ऐसी टेढ़ी क्यों, स्ट्रेट क्यों नहीं होती. दे गेट आइदर टू पैरानॉइड और दे मे बी लूज इंटरेस्ट वेरी क्विकली. दोनों में से ये दोनों ही चीजें बच्चे की वेलफेयर के लिए और पेरेंट के वेलफेयर के लिए ठीक नहीं है. अगर पेरेंट्स ही अपनी पेरेंटिंग में एंजाइटी ले आए या चिंता ले आए या ओवर इंडल्जेंस ले आए, तो उसमें पेरेंटिंग से मजा निकल जाता है. वो इट बिकम्स मोर लाइक अ ड्यूटी, विच इज नॉट व्हाट पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट. So my little bit of my part of my experience in having been in counseling in schools, my understanding is that try to put in education of specific learning difficulties from kindergarten itself. You'll be surprised that again the same amount. Now we're not saying we need to be worried. Identifying them. हमारी identifying 3rd standard के बाद क्यों? हमारी आइडेंटिफाइंग 1st स्टैंडर्ड kindergarten से होनी चाहिए. Kindergarten and then immediately is 1st standard is where we are pretty much established. So within kindergarten comes where the parent is saying ki the phonetic is I'm having problems. We also know now that education methodology has changed now. The teaching the ABC is like a, b, k through phonetics, and it's not like it is not T for table, it is T for table. So phonetics, also the education system is changing. There are more pictorials for the kindergarten child, more pictorially, more how they can use the audio visual aids. You know that we have a lot of videos and stuff. So education is, the methodologies of education is also changing, basically to cater to precisely the learning difficulty set of kids. Now the important part is that when we start to intervene, now what we do is very typical. जैसे मैंने आपको बताया कि टीचर तो स्कूल में है, वो टीचिंग मेथोडोलॉजी अगर हम कुछ पेरेंट्स को सिखाएं, बेसिक्स, जस्ट द बेसिक्स, within 1 hour of remediation, 1 hour of training, all the parents are very interested to do that. When do the parents get demotivated? जब उनको या तो lack of awareness होती है या उनको लगता है कि सब कुछ ट्राई कर लिया और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है. That's when they kind of become distressed and disinterested to help the child. Otherwise, in my experience, there is not a single parent who says, नहीं जी मैं तो नहीं आऊंगी जी, ये टीचर का ही काम है, मैं नहीं सिखा रही. Not at all. They would love to, yes ma'am, we want to understand. So that is whose job? That is the job of the teacher. Now the teacher may not be a special educator.
मैम आई वांट टू शेयर वन थिंग इन दिस. बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि पेरेंट्स को अवेयर होना. I'm sharing example of my school. There are 9 parents of children with special need, and they are trained special educator. Actually, we motivated them and we tried कि उनको स्पेशल एजुकेशन सीखना चाहिए, और हमने देखा वो करने के बाद दे आर नाउ वर्किंग इन डिफरेंट स्कूल्स एंड दे आर हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन आल्सो. और जो ड्रास्टिक चेंज बच्चों का, जो एक अंडरस्टैंडिंग है, पेरेंट्स की एक अंडरस्टैंडिंग है, एक प्रोफेशनल के पर्सपेक्टिव से भी और एक पेरेंट के पर्सपेक्टिव से भी, उसका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हुआ, और उन बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसमें भी बहुत सारा, मान लो एक पॉजिटिव चेंजेस बहुत सारे आए उसमें. तो बहुत इंपॉर्टेंट. Right, absolutely, बिल्कुल correct. So basically when we're talking about, हम जब specific learning difficulties की बात कर रहे हैं, तो उसमें जैसे अनिल ने भी बताया that it is partly neurological, partly cognitive, developmental. So it's a combination of all. अब हम बात simple, let's come to brass tacks. Simple techniques, simple ways to have a holistic management of children with specific learning difficulties. Very simple. Let's start with a very simple process. बहुत पेरेंट्स बोलते हैं शुरू में ही, जब बच्चा प्राइमरी स्कूल में होता है, कि ये अपना होमवर्क बैठ के नहीं करता है, टिक के नहीं करता, बाद में करता है, इनकम्प्लीट कर, you know. So having basically 5 factors which make up a complete development of the child. अच्छा बस ये 5 चीजें हैं, ये 5 चीजें अगर आप समझ लें, इसी में ही आपका सारा मैनेजमेंट आ जाएगा स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज में. So the 5 things are fixed waking up hours, fixed study schedule, fixed meals schedule, खाने का, fixed games, physical activity, leisure schedule, fixed bedtime. ये 5 तत्व अगर आपने पेरेंटिंग में फ्रॉम प्ले स्कूल शुरू कर दिया, you will not have any difficulty to incorporate the simple things that teacher will tell you कि ये बच्चे को इस तरह से सिखाइए, which we'll come to later on, just in a couple of minutes. 5 things. Normally हम लोग इन चीजों को for granted ले लेते हैं, और बच्चा जब मिडिल स्कूल में आता है वो कहता है कि ये तो बच्चा पढ़ता है, इसका रूटीन ही नहीं है, इसका ये नहीं है, देर तक कहना नहीं मानता, रिबेल हो गया है. Too late. So let's start from the kindergarten. बट आपका अगर घर में डिसिप्लिन नहीं है इन 5 चीजों को लेके, तो आपकी परेशानी बढ़ेगी, बच्चे की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी. विद इन दिस कम्स द स्टडी शेड्यूल. फिक्स कर लीजिए, एक जगह फिक्स बना लीजिए, घर का माहौल ऐसा हो कि बच्चे को पता है कि आधे घंटे की, I'm not talking about kindergarten, mind you, kindergarten child also needs to come back and revise in a playful way, not in a serious. अगर माँ के दिमाग में अगर टेंशन है कि वहां सब्जी बनानी है और इसको बैठना पड़ेगा आधा घंटा, तो वो बच्चे को दिख जाएगा, and that is not going to be good for you. So be prepared for disciplining your life. The child with specific learning difficulties need a little more help. That's why we are sitting and talking about it. हम दूसरों के साथ मत कंपेयर कीजिए, उसका बच्चा तो कंप्लीट करके खेलने चला गया. We don't want to do that. आप ये देखिए कि आपके बच्चे का, so sit with the child. Now what you need to do is focus on more on phonetics. Now children with dyslexia will avoid writing mama haath dukh gaya, mama left right hand, doesn't matter. You will have to consistently say, beta we have to finish this and then we go to play, let's do this, then we do this. So you have to motivate the child. If we are talking about reward dijiye jo intrinsic ho. Intrinsic मतलब ये टॉफी चॉकलेट चीजें एक्सटर्नल चीजें होती हैं, टेम्पररीली कुछ हद तक हेल्प करती हैं बचपन में, say in the first formative years, but avoid that. It could be more like give a star, give something like something more intrinsic. Okay, coming back to so motivate the child, make sure the child has a fixed routine in terms of half an hour of studying every day. Give one Sunday off to yourself and to the child. वो बहुत important एक element है जिसमें बच्चा streamline हो जाता है कि ये मेरा schedule है. Now comes the next part of it. Try now, like I must tell you that this continues till primary years and later. Let's say first standard, second standard, third standard. उसमें आप बोलेंगे कि बच्चे को इंग्लिश को लेके है, कोशिश कीजिए आप सुपरवाइज करें बच्चे की पढ़ाई. फॉर एग्जाम्पल
बच्चे ने क्लास वर्क अपना कॉपी खोली और क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको तो शाम का काम करना, जल्दी से इसको रट लो बेटा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर्स रट लो। बच्चा रट लेगा आने फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड तक, आगे जाके वही बच्चे को प्रॉब्लम होगी। रोट एजुकेशन बिल्कुल अवॉइड करो आप। तरीका क्या है, थोड़ा मुश्किल है बट इट कैन बी डन, which is open the chapter, take the first page only, give the child that particular one page and say let's take, आप बेटा एक पैराग्राफ पढ़ो सर, let me hear you one paragraph when the child reads, बच्चा बोलेगा हो गया अब मैं जाऊं, हो गया खत्म, नहीं, let's do that, close the book, आप हिंदी में या अपनी भाषा में बताओ आपको क्या समझ में आया। Again open the book, अगर बच्चा बोले मम्मा मुझे नहीं आ रहा, you can do it, see you can do it, it's about, तो वो चैप्टर क्या है, it is about India, जो भी चैप्टर है उसको आप मोटिवेट करें। The more you tell the child you can do, the more next day, कुछ दिन बाद वो अपने आप वो चीज करेगा जो आप उससे आप सुपरविजन में करवा रहे हैं, which is read that paragraph again, close the book, अपने ही शब्दों में, पहले आप हिंदी में जो भी नेचुरल लैंग्वेज है आपकी, then convert that into English in your own language. Write that 3 lines that you've understood of the paragraph. Just the 3 lines in your own handwriting. मुश्किल है लेकिन ये टेक्निक है for the child to feel confident that I am able to understand this. Please, lot of parents, जब तक बच्चा 6ठी 7वीं पे ट्यूटर आ जाता है, उससे पहले होता है माँ बाप होमवर्क कंप्लीट कर रहे होते हैं, उनका माँ बाप ही कर रहे होते हैं, होमवर्क ही कर दिए, चलो भैया किताब बंद करो, कल की कल देखी जाएगी। प्लीज डोंट डू दैट, यू आर डैमेजिंग द चाइल्ड सेल्फ एस्टीम। बच्चे का सेल्फ एस्टीम सोचिए जो उसको पता है कि होमवर्क मैंने नहीं किया है। So don't do that. Like Anil also said, there's a lot of personality development, a lot of self-esteem issues. So that is about English. Make sure that the child writes. Now that child will have a sense of pride कि मुझे एक पेज समझ में आ गया. Give a 10 minutes break. So go early in life. Don't start when the child is in middle school. क्योंकि वो suddenly syllabus बढ़ जाता है और आपको भी बहुत घबराहट होगी कि करना कैसे है। शुरू से करेंगे तो बच्चे को एक रूटीन में उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे इंग्लिश कैसे समझनी है, पढ़नी है और लिखनी है। That is one very important. Now let's talk about mathematics. मैथमेटिक्स अच्छा एक और चीज है, सब कुछ ट्राई करके भी बच्चा नहीं अच्छा मार्क्स ला रहा। मेरी रिक्वेस्ट ये है, प्लीज मेक श्योर दैट द चाइल्ड परफॉर्म्स सो दैट ही पासेस इन मैथ्स। व्हाई आर वी आफ्टर द चाइल्ड? सी, इंग्लिश हम लोग नहीं कर सकते पास एटीट्यूड, क्योंकि इंग्लिश इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जो हमारे मेट्रोज में है या जो बड़ी सिटीज में है। इंग्लिश को हम नकार नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। इट इज देयर, हाँ, अनलेस यू कैन हैव अ चॉइस इन सीबीएसई टू हैव द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हिंदी। लीविंग आउट दैट, so then comes mathematics. Make sure, if you feel, let the child just about get passing marks, that's all right. Please do not put a lot of pressure on the child कि आपको 80% लाने हैं, 90%। बाकी सब्जेक्ट्स क्योंकि इंग्लिश में है तो क्योंकि उसको मेथड समझ में आ गया है, चांसेस ये होंगे that he or she will be able to cope up better with it. Now other important thing, बच्चे के घर में exercise form is very important. Such children have high, their brain moves very fast, they are also very active, they are restless. Put them in any strenuous, any kind of a workout. It could be football, it could be dance, it could be any other game. Make sure you do that. ये please मत कीजिए कि तुमने पढ़ा नहीं या तुम punished हो, तुम अब खेलने नहीं जाओगे, वो double damage हो रहा है। Activity, physical activity is very important. बच्चे की क्या हुनर है वो तो सबसे बेस्ट पेरेंट जानेगा। यहाँ तक कि मैं बोलूंगी टीचर्स भी नहीं जान पाएंगे क्योंकि एक क्लास में 50-55 बच्चे होते हैं। So do you know what your child is good at? Maybe the child is good at mimicking, maybe the child is good in theater, maybe the child is good at dancing, cooking, creative, drawing, painting. उसमें आप जरूर बच्चे को मोटिवेटेड रखें। Please understand the child's confidence is developing and that will help in curtailing the learning difficulties that the child is going through. Anil ji, कुछ आप बात कहेंगे इसमें? And then I think maybe we can take up the question answers. Yes, मैम, बहुत अच्छा आपने बताया। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगती है कि नॉट ओनली इन स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, बिकॉज
बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं दिल्ली के जो स्पेशल एजुकेशन और काउंसलिंग में बहुत काम कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं या वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है हमें देखनी है वो देखना होता है पैटर्न, कि जो लर्निंग स्टाइल है, जो राइटिंग रीडिंग का पैटर्न है, उस चीज की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। और पेरेंट्स के लिए भी, एक टीचर के लिए भी, और फॉर एजुकेटर आल्सो, लाइक वी आर डूइंग दिस इन प्रैक्टिकली with students when students will come with through teacher or maybe directly with the parents, कि इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, रीडिंग नहीं कर पा रहा, एकेडमिकली अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा। तो जो टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं, आफ्टर दैट आइडेंटिफिकेशन, दैट वी आर फोकसिंग ऑन असेसमेंट। और उस असेसमेंट में भी एक चीज है जो एजुकेशनल असेसमेंट पार्ट है, उसमें हमें ऑब्जर्व करना होता है कि उस बच्चे का करंट फंक्शनिंग क्या है, ग्रेड लेवल क्या है। कि एक बच्चा 6 क्लास में है और नॉट एबल टू कॉप अप विद दैट सिलेबस एंड नॉट परफॉर्मिंग वेल, बट हमें अगर उसके साथ काम करना है, बहुत बड़ी चीज है ये, इसको समझना जरूरी है कि अगर हमें उस बच्चे के साथ काम करना है तो हमें उसके बेस लाइन को समझना पड़ेगा कि उस बच्चे की हिंदी किस तरह की है, किस लेवल की है। मे भी हो सकता है वो 3rd ग्रेड की हो, 3rd क्लास की, और मे भी हो सकता है इंग्लिश जो है उसका 2.7 एक लेवल हो, ग्रेड हो। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर जो एक लेवल है कि एक बच्चा क्लास में 7th क्लास में है, लेकिन उसका जो ग्रेड लेवल है इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स में क्या है एग्जैक्टली, वी हैव मेनी टूल्स विद अस। और वो इनफॉर्मल और फॉर्मल असेसमेंट में भी आते हैं। टीचर आल्सो कैन डू दिस, और टीचर को पता भी होता है कि भी उसको ये वर्ड नहीं पढ़ना आ रहा, ये सेंटेंस नहीं पढ़ना आ रहा, जो कि 5th क्लास के बच्चे पढ़ लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि टीचर इज हैविंग अंडरस्टैंडिंग कि उस बच्चे का जो लेवल है, ग्रेड लेवल, वो 2nd क्लास है या 3rd क्लास जो भी है। तो जब तक हम उस लेवल पर जाकर काम नहीं करेंगे तब तक उस बच्चे की जो एकेडमिक ग्रोथ है उसको हम अचीव नहीं कर सकते। और यही एक थोड़ा सा एक डायलेमा जो रहता है पेरेंट्स के अंदर भी, कई बार टीचर्स के अंदर भी। मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ इस चीज से कोरिलेट करने की कि पेरेंट्स और टीचर हैव मोर एक्सपेक्टेशंस, और जो बच्चे की जो एबिलिटी है वो कम है। तो ये जो इम्बैलेंस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट और इरिटेशन, स्ट्रेस क्रिएट करता है। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती रहती हैं वैसे वैसे वो चीज बढ़ती रहती है। तो करना क्या है कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर हम उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली बैलेंस करने की कोशिश करें तो वो एक बहुत अच्छी इंटरवेंशन होगी। और उसका जरिया क्या है कि हम अपने बच्चों को ये देखें कि उनका जो एकेडमिक लेवल है, पर्टिकुलरली लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स में, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो, तो उसमें वो लेवल क्या है। जब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, आप इंटरवेंशन देते रहेंगे 7th क्लास के बेसिस पे, 6th क्लास के बेसिस पे, और वो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा उस बच्चे में। तो दैट वी हैव टू फोकस ऑन द ग्रेड लेवल, फर्स्ट थिंग। दूसरा, जो बच्चे की, हर बच्चा यूनिक है, ठीक है, उसकी हर किसी की लर्निंग स्टाइल है, उसका जो स्टडी हैबिट्स हैं, जैसे मैम ने अभी बताया टाइम मैनेजमेंट के लिए कि जस्ट फिक्स द, मान लो करिकुलम बना के या एक पर्टिकुलर शेड्यूल बना के फिक्स करो उस चीज को, बट उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि या तो हम बहुत बड़ा बना लेते हैं, उसको इस तरह से पैक कर लेते हैं कि हम ही उसको 1, 2, 3, 4 दिन बाद फॉलो नहीं कर पाते। तो जस्ट दिस माई सजेशन, पर्सनल सजेशन, दैट फोकस ऑन वन एस्पेक्ट। आपके सपोज कोई भी टारगेट हैं, लाइफ के गोल हैं, आपके एकेडमिक गोल्स हैं, आपके स्कूल गोल हैं, आप उसको फोकस करें, आप उसका लिस्ट बनाएं कि देयर आर लाइक 10, 12 टारगेट आर देयर। ट्राई विद फर्स्ट वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप सारे 12 को एक साथ लेंगे और एक साथ ही शेड्यूल करने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि ऐसा पॉसिबल होता तो ऑटोमेटिकली हम कर पाते। अगर लर्निंग करनी है उस चीज की तो जस्ट फोकस ऑन वन एंड जस्ट मेक ए प्लान। उस एक के लिए ही आपको 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज काम करना है, और आप उसमें सक्सेस होते हैं, इट विल एनहांस योर कॉन्फिडेंस एंड आपको लगेगा कि दैट यू कैन प्लान मोर एंड मोर। और एकेडमिक चीजों के लिए जैसे मैम ने बहुत अच्छी टीचिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताया, जो पर्टिकुलर हम यूज करते हैं एज ए स्पेशल एजुकेटर, कि किस तरह से आपको डिफिकल्टी है रीडिंग में, और
पेरेंट्स आपके पास बहुत सारी ऐसी बुक्स ले आते हैं जिसकी वोकैबुलरी बहुत हाई है, जिसका कॉम्प्रिहेंशन लेवल बहुत हाई है, और आप उसको पढ़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन बच्चा डिफिकल्टी फेस करता है, यानी उसको वो बुक नहीं चाहिए, उसको उससे कम लेवल की बुक चाहिए, जो उसका जिसका कॉम्प्रिहेंशन लेवल जो है वो थोड़ा सा कम हो, उसके अकॉर्डिंगली हो, उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंगली हो। तो इस तरह की भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि ये सारी जो पर्टिकुलर जो भी प्लानिंग हम करते हैं, जो टीचिंग स्ट्रेटेजी देते हैं, दिस इज बेस्ड ऑन असेसमेंट। और असेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमारे साइकोलॉजिस्ट के पास आओ, एजुकेटर के पास आओ तो ही असेसमेंट है। बहुत सारी ऐसी ऑब्जर्वेशंस पेरेंट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि मैम ने कुछ पॉइंट्स बताए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिसग्राफिया एंड डिसलेक्सिया, वो भी हैं। उसके अलावा सिंपल एक बहुत अच्छी टेक्निक मैं बता रहा हूं आपको, कि एक बच्चा है 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, 9th क्लास में, जिस भी लेवल का है, उसको आप एक डिक्टेशन दीजिए, उसको एक डिक्टेट कर, एक पूरा 1 पेज 2 पेज डिक्टेशन दीजिए, और जो वो मिस्टेक करता है उस पैटर्न को पहचानो एंड दैट कोरिलेट विद नोटबुक, तो वो पैटर्न फिक्स पैटर्न मिलेगा, और जिसकी वजह से वो एकेडमिक प्रॉब्लम आ रही होगी। इसी तरह से आप मैथमेटिक्स हैं, जस्ट गिव जर्नल क्वेश्चंस। अगर छोटी क्लास में बच्चा, तो आप मैथमेटिक्स हैं, आप अपना हिंदी इंग्लिश के वर्ड लिखने हैं, कुछ भी ऐसा आप वर्ड, एक वर्कशीट टाइप आप उसको दे सकते हैं, और उसमें से आप आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आपको लगता है कुछ 2 4 5 दिन असेसमेंट करने के बाद आपको लगता है द चाइल्ड इज हैविंग स्पेसिफिक पैटर्न, वो एक सबसे बड़ी एक शुरुआत है जो उस बच्चे के लिए, कि आप उस चीज को समझ पा रहे हैं। नॉर्मली मुझे पता है कि हर पेरेंट स्पेशल एजुकेटर साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं पहुंच पाता, और ना ही पहुंचना चाहता है, कि नहीं है मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बच्चा ठीक है, मेरे बच्चे की रीडिंग ठीक है, ये ठीक हो जाएगा आगे। बहुत सारी ऐसी एजम्पशंस होती हैं पेरेंट्स की, और कुछ पेरेंट्स हैं बहुत अच्छा करते हैं कि उनको अंडरस्टैंडिंग होती है उस एस्पेक्ट की, कि हाँ ये हमें कहाँ काम करना है और इसके लिए क्या काम करना है। तो इस तरह की जो इंटरवेंशंस हैं, वो चाहे कॉग्निटिव इंटरवेंशन हो, स्पेशल एजुकेशन हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, सोशल स्किल ट्रेनिंग हो, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसमें कहीं ना कहीं हम उस बच्चे को मेन स्ट्रीमिंग में ला सकते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज है, जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार बार लिखा हुआ है कि क्या ये डिजीज क्योर हो जाती है, तो प्लीज, दिस इज नॉट डिजीज, ये डिजीज नहीं है। डिजीज स्किन डिजीज होती है और दूसरी तरह की बहुत सारी डिजीज होती है, तो दिस इज नॉट डिजीज, सो डोंट कॉल डिजीज दिस। क्योर हो पाती है कि नहीं है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। सपोज आई डोंट नो हाउ टू राइड साइकिल, ठीक है, मैं बैलेंस नहीं बना पाता साइकिल पे, और मैं अगर कोऑर्डिनेशन मेरा सही नहीं है, साइकोमोटर एबिलिटी मेरी सही नहीं है, तो मैं उस चीज को नहीं कर पाता, तो आई एम लर्निंग डिसेबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर एरिया, कि आई एम नॉट एबल टू राइड साइकिल। इसका मतलब ये नहीं है, मैं अगर उस चीज को निकाल के बाहर कर देता हूं मेरी लाइफ से, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी लाइफ उससे इन्फ्लुएंस होगी। सेम थिंग इन लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी इज बेसिकली जो ब्रेन के एरिया है, बहुत सारे एरिया है ब्रेन में, और अलग अलग एरियाज हैं। सिर्फ एक वर्निक एंड ब्रोकाज एरिया जो लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे रीजनिंग है, या ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, तो इस तरह की चीजें भी इन्फ्लुएंस होती हैं। बट उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लाइफ रुक जाएगी, वो भी लाइफ में वही कर पाएगा जो जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। सिंपल ये एक मैसेज है, आपको भी स्प्रेड करना है ये, कि लर्निंग डिसेबिलिटी कोई डिजीज नहीं है, दैट इज सिंपली एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। पर्टिकुलर कुछ ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो डिसफंक्शन है, वो डैमेज नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर पाएंगे, वो थोड़ा काम कर पाएंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा काम कर पाएंगे। अगर मैं साइकिल सीखना चाहता हूं तो आई कैन डेवलप दैट पर्टिकुलर एरिया, कि मैं उसकी प्रैक्टिस औरों से ज्यादा करूं और मैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अचीव कर सकता हूं। सेम थिंग इन लर्निंग डिसेबिलिटी। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लाइक दे आर फेसिंग डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, कि उनको समझ आ जाता है बट लिख नहीं पाते, या वो जो भी पढ़ते हैं वो याद नहीं हो पाता, तो उसके भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, उनको भी असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस मैम, प्लीज। राइट, अनिल ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि वो कोई किसी ने लिखा है कैन इट बी क्योर्ड। सो उन्होंने बोला कि ये कोई डिजीज नहीं है। एक्चुअली क्योर जो है हम पेरेंट्स को करना है, अपने हमारी कंडीशनिंग को, हमारी सोच को। वी नीड टू क्योर आवर हेल्पलेसनेस एंड से
that this is learning difficulties. There is no, it's not a shortcoming. It is not something that is going to limit the child's development. दो important चीजें हैं. I think we would like to sum it up also. I know there are a lot of questions, but Anil did take up a couple of them. And दो चीजें जो मुझे समझ में आई हैं इसी process में जो बता रहे थे कि बच्चे का पढ़ाई का तरीका, उसका some kind of exercise form. The other important part is nutrition. A lot of children who have learning difficulties are hyper energized. They are prone to having fast food, carbs, sugar, starch. They have a craving because they burn calories a lot. आप जितना ही वो चीज उनको प्रोवाइड करेंगे उतनी उनकी हाइपर एक्टिविटी, उतना ही उनको लैक ऑफ कंसंट्रेशन, उतना ही उनका रेस्टलेस माइंड बढ़ जाएगा. So nutritious diet is very important, much as lot of parents say कि ये तो खाता ही नहीं है जी, मैं ये इंटरेस्टिंग तरीके से खिलाओ. आप जरूरी नहीं कि वो बीन्स आपको बच्चे को दिखाई दे, उसको मिक्सी में करके आटे में मान के दो. Do something creative. So your choice is your responsibility as a parent is to make sure the child is cutting down on carbs and don't keep in the house. आप लोग अगर एग्जाम्पल नहीं मतलब अपने आप को बनाओगे, so the child is not going to follow that also. The other, perhaps the last and perhaps the most important part, having been in school environment, lot of times career counseling को लेके ना हम लोग 9th में जाते हैं, school environment, teachers, parents, क्योंकि 11th में subject लेने हैं. Why? Because we are looking again, we started talking about specific learning difficulties. बच्चा और बहुत चीजों में हुनर रखता है. हम लोग क्यों blinded रहते हैं till the time the child is in 8th or 9th or 10th? My request is, in the primary years, within class, starting from class 4, 5, when the child is stabilized in academics, stabilized in routine, आप बच्चे को observe कीजिए. For example, Ma'am, you are muted. So Renu chose to mute me. She says, "बहुत हो गया अभी, No, बहुत no, बोल ma'am, रही by है." mistake, by mistake. By No mistake. problem. I'm just pulling a fast one. अरे मैम, ठीक है. So the important part is कि आपका जैसे फ्री टाइम में जैसे ही बच्चे को फ्री टाइम मिला, वो बच्चा दौड़ के पापा का लैपटॉप को फोन लेके he is playing a very interesting game. Now the father is not even looking what is he doing. And this is a very difficult game. It's a computer game. वो father को ही समझ में नहीं आ रहा. That means a child has an aptitude for it. Observe your child. The moment, like there was my daughter when she was in play school, first standard में थी, तो वो घर आते ही अपना काम खत्म करके वो अपने सारे टॉयज निकाल के she used to mimic the teacher. Okay children, तो बच्चों को वो अपने टॉयज को रो में करके, and I said she mimics beautifully well. वो एक particular accent. So observe. Your child is made up of much more. Please unmute whoever it is. The child is made up of much more than academics. Now comes then what? बच्चे के साथ बात तो कीजिए. ये इतना ही काफी नहीं है कि भाई ये इंग्लिश हो गया, होमवर्क कंप्लीट हो गया, टेस्ट है, यूटी है. No. What do you want to do in life? What do you want to do? Like speak to the child. Talk to the child about different careers. Does the child know कि उस बच्चे की जो ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, मामा है, वो क्या करते हैं? ये पता है कि हाँ वो ऑफिस जाते हैं. What in the office does the child, does that uncle or auntie do? So please introduce your children to the world of work in primary school. And it is up to you. आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चे का हुनर, उनका aptitude समझे. And I think there are a lot of people who are writing, yes, excess screen time, mobile usage is also cause of concern. You allow it. आप लोग अपना फोन ऑफ कर देते हैं. पापा जब फैक्ट्री से आते दुकान से, हमारे तो फोन चालू रहते हैं पेरेंट्स के, तो बच्चा क्यों नहीं रखेगा? थोड़ा डिसिप्लिन जरूरी. काफी. मैं ये 5 तत्व आप फॉलो करेंगे तो बच्चा भी फॉलो करेगा. Please understand, if you are not giving importance to the mobile phone, you are disciplined, the child will follow you. This is how can we support the holistic management of children? 5 points. I repeat again. Aarti Kochar is asking, no, Meghna, Aarti Kochar is asking, how can we support holistic management of children? यही है parenting जी, और कोई मम्बो जम्बो नहीं है. Wake up time, fixed wake up time, fixed studies time,
work time, study time, fixed meal timing, fixed exercise, leisure, entertainment time, fixed sleep time. हम नहीं करते ये वीकेंड सो जाना बेटा 2 बजे, doesn't matter, पार्टी चल रही है, no. If you don't have a discipline, this is the way to holistically manage routine. जी, or any other question, Renu, जो अनिल और मैं we can take For up. the students and parents asking this question, that how we can help अनिल students. आप जवाब दे दीजिएगा, कोई other question? अनिल आप जवाब दे सकते हैं, आपको अगर उस पे मैम चैट एक पे देखना हो क्वेश्चन तो। बार बार है आरती कोचर का ही, आपने वैसे बताया कि फिक्स रूटीन है, उसके अलावा क्योंकि मुझे लगता है पेरेंट्स साथ बैठे हैं और बड़ा कुछ जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से एक होलिस्टिक मैनेजमेंट चिल्ड्रन में हो सकता है। पर्टिकुलरली अगर हम देखते हैं तो मोस्टली पेरेंट्स का एक कंसर्न रहता है, दे आर ऑब्जर्विंग अदर्स, दे आर थिंकिंग अबाउट अदर स्टूडेंट्स, क्लास में किसको ज्यादा मार्क्स मिले हैं, क्लास में कौन अच्छा बोला है, किसने एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, कौन स्पोर्ट्स में अच्छा है। तो वो अलग अलग बच्चे भी हैं, कई ऐसे भी बच्चे हैं जो हर चीज एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसको हम हॉलिस्टिक बोल रहे हैं। तो कंसर्न मेरे अकॉर्डिंगली लगता है कि दैट एज ए पेरेंट्स जो एक चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप है उस पर बहुत फोकस करना चाहिए कि एक जो बच्चे का एक अंडरस्टैंडिंग है एक पेरेंट की नजर में कि बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं वो, और उसमें जो एस्पेक्ट्स हैं नॉट ओनली एकेडमिक, उस बच्चे का पर्सनैलिटी है, जैसे मैम ने एक बताया, एप्टीट्यूड है उसका, एटीट्यूड है, उसकी वैल्यूज हैं, उन चीजों पे भी फोकस करना चाहिए। समटाइम्स लाइक वी आर कंसर्न बट साइमल्टेनियसली वी आर इग्नोरिंग दैट बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन था कि मोबाइल को कैसे बंद करवाएं और पेरेंट्स खुद यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि उनके लिए आप रोल मॉडल हैं, बच्चों के लिए आप रोल मॉडल हैं, बट आपने सब कुछ किया हो ये जरूरी नहीं है। आपने बेस्ट किया होगा बट आपने सब कुछ किया हो ये जरूरी नहीं है। तो ऐसा क्या और उस बच्चे की इमेज क्रिएट करनी है उसकी पर्सनैलिटी को लेके, जिसमें उसका इमोशनल ग्रोथ हो, उसका फिजिकल ग्रोथ हो, उसका साइकोलॉजिकल ग्रोथ हो, उसका एकेडमिक ग्रोथ हो, उसका सोशल ग्रोथ हो, वो सारी की सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है। मैं जस्ट आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल कि एक बच्चा है 12th क्लास में, इंडिया में मान लो 4th या 5th पोजीशन थी, और उसने आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में बीटेक में एडमिशन लिया, और फर्स्ट ईयर में वो बहुत अच्छा करने लग गया, बट उसके पेरेंट्स उससे बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो अपनी तरफ से पूरा हार्डवर्क कर रहा है, लेकिन कहीं वो इरिटेट होने लग गया, फ्रस्ट्रेट होने लग गया, उसकी मदर उसको कुछ बोलती तो वो उसको बहुत भारी लगने लग जाता। ठीक है, यानी वो सेम चीज कि वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी एबिलिटी है बच्चे की, लेकिन एक्सपेक्टेशंस उनसे भी ज्यादा हो रही है। तो अगर हम हमारे बच्चों से आप बाहर मत जाओ, बाहर ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, उन सब चीजों में से हम उन चीजों को छांट लें कि हमें एग्जैक्टली बच्चे को क्या सिखाना है, और अगर हमें बच्चे को कहीं भेजना है उसमें से उसको हमें देखना है कि उसने क्या सीखा। ठीक है, नॉर्मली बहुत सारे पीयर प्रेशर होता है, और पीयर प्रेशर की वजह से सपोज एक स्मोकिंग बिहेवियर है, बच्चा सीख रहा है, लेकिन उसी ग्रुप में 2 ऐसे बच्चे हैं जो उसी ग्रुप में रहते हुए वो चीज को सीख नहीं रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ पेरेंट्स दे सकते हैं, वो पेरेंट्स उसको गाइड कर सकते हैं कि बेटा ये चीज सही है, आपको करनी है, नहीं करनी है, बट इसका ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो इस तरह से हम उन चीजों को रख सकते हैं और डिस्कस विद योर चिल्ड्रन about their emotions, about their feelings, about their what life they are living, क्योंकि हर एक बच्चा अपनी लाइफ में अलग अलग जीता है, जरूरी नहीं होता कि वो हर चीज आपसे शेयर कर रहा हो, तो और करे भी, ऐसा भी जरूरी नहीं है, उसका भी राइट है कि वो अपनी चीजों को रख सकता है अपने पास। बट कॉमन ऐसी चीजें हैं जो जो पर्टिकुलरली उसको वैल्यूज देती हैं, जो उस बच्चे की हेल्प करती हैं पर्सनैलिटी में, उसके आगे करियर में, उसके लिए आप बता सकते हैं कि किस तरह से उसकी जो स्किल्स हैं, वो एटीट्यूड है, उसका एप्टीट्यूड है, किस तरह से उसके कैरियर में, उसकी लाइफ में हेल्प कर सकता है। तो उस चीज को फोकस कीजिए, और उस चीज को फोकस करके अगर आप डील करेंगे अपने बच्चों के साथ तो डेफिनेट। Okay, perfect. Now I think last but not the least, we are almost extended our time. 6 बज गए, और आखिरी में, like I said, last but not the least, we at Fairgaze are having counselors
and I would request Renu to also share on the stream how the viewers, people at everybody and anybody can access, they can fix up appointments with our counselors, because there are a lot of questions. If we are just in the warming up stage, बहुत सारे questions थे about specific learning difficulties. You can book your appointment. You can click here on the icon on the Fair Gaze portal. You also know that we have an app. Am I right, Renu? We have an app. Fair Gaze app is there. Please download the app. There is nothing to lose. There is in fact just a win-win situation. Online जिंदगी हमारी चलेगी और online में जितना हम benefit ले सकते हैं हमको लेना चाहिए. So without much ado, Renu, आप सब कुछ sum up कीजिए और thank you very much. Yes, please. Over to you, Renu. Thank you so much, ma'am. Firstly, I would like to thank you and Anil sir for joining us today and giving us Thank much you very knowledge about this thing. Like, we must need awareness about these topics, and somewhere the parents are also not aware about. We all know that in most of the family there are one person who is facing some difficulties in their life, and the parents are not aware about these things. But I hope, and I must say that after session the parents will aware, and they must get some beautiful and insightful knowledge from both of you, as you explain, and Dr. Anil Kumar also explain us everything very beautifully and very simply. I can see that our audience is very interactive and they are understanding everything that you say and Dr. Anil say. Thank you. Thank you. I wish that we have more sessions with both of you in future. On behalf of Fair Gaze, I would like to thank you, Dr. Anil Kumar, both of you on the behalf of Fair Gaze. Again, I would like to thank you and the audience who joined us today. Thank you so much for joining us and interacting us, and the audience who is live with us on Facebook. I just want to take a 1 minute from all of you and want to show it my screen. So at Fair Gaze, currently we are having a competition, which is a national level competition, and it is led by NCERT Major Harsh Kumar. And the competition is India as I See, where we have 3 programs, which are basically painting competition, poem competition, and essay writing. These competitions are for each class, like 1st to 5th class, they have to do painting. 6th to 8th class, they have to write poem on rhythmic patriotism, and for 9th to 12th, we have essay writing. So there are some steps students have to follow. They have to write their essay, poetry, and they have to paint. They have to go there, register. They have to first register themselves. This is the registration form, and I want to mention a thing here. To the all teachers who are present and the parents, that we have this program is also open for children with special needs, and this is absolutely free for them. They don't need to pay. They just have to register and have to upload their poetry, their painting, and their essay. These are the simple steps they have to follow. And after registration, they can upload their painting, poetry, and essay. And after uploading, they can check their ranking on Check Your Ranking page. So I request each and everyone to participate, as the winner will get the cash prizes and also a certification. So I request to everyone that they can go to our page and register themselves. And if anyone has any query, they can mail us at info@fairgaze.com. Again, I would like to thank you, ma'am and sir, for joining us. Yes, sir, you want to say something? बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है मैम आपका, और मैंने पहले भी देखा था ये, और हमारे साथ बहुत सारे स्पेशल एजुकेटर हैं अभी इस ग्रुप में, और कुछ पेरेंट्स भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो पार्टिसिपेट करें और दूसरे बच्चों का भी पार्टिसिपेट करवाएं, क्योंकि सबसे अच्छा जरिया है, जो सबसे बड़ी जो खुशी है उन बच्चों के लिए, वो है कि हम उनको अपॉर्चुनिटी दें पार्टिसिपेट करवाने की, और उनको पार्टिसिपेशन होगा तो वो अपनी स्किल्स, अपनी चीजों को बाहर ले पाएंगे, और थोड़ा सा वो बढ़ा पाएंगे उन चीजों को. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, ma'am, and thank you everyone today. Thank you, Madhumati ma'am, and thank you, sir. Have a lovely evening. Bye, ma'am. Bye, sir.